So today in this session, we will be discussing about how we start and complete a project. Whenever we get a project, we have to understand the requirement. We have to understand what will be the backend database tables, columns, fields, their data type, etc. We also have to understand what are the forms, what are the different types of users in this particular project. So once we understand the project from users point of view as well as from the developer point of view, then we start coding. Usually we do not start coding directly. We have to first understand what are the different types of users that will be accessing the resource. Then we will discuss, we have to understand what are the different types of records that are required to be stored. Then we will have to understand what is there any security issues that is to be implemented. So everything has to be first understood, then we start coding. So this is a sample project that I'll be discussing in the coming sessions, and we'll try to complete it. And through this project, in the coming sessions, now we'll have alternate day classes so that you get time to implement. I've seen that many students, many interns do not get enough time to complete their work. So that is not good. It is always better to complete your sessions, complete your work that is given. So this is a project, this is a topic, a receipt recommendation system. So the topic of our project is receipt recommendation system. Uh, so what is the project overview? This project is a web application. It is a web application where users can enter ingredients that they have at home, and the system will recommend recipes based on those ingredients. The project involves PHP for the backend logic, MySQL for storing the recipes and the ingredients, and simple HTML CSS interface for the user interaction. Okay, so what this project is, after going through the project overview, whenever you get a project overview or the documented form, you should read it twice, so that you get a better understanding. And then try to note down the things that you understand from the written requirement that has been given. So I'll open a notepad, and in the notepad, I'll try to keep the things available. Okay, so this is the notepad. So it is a web application where users can enter ingredients that they have at home, and the system will recommend recipes based on those ingredients. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि करना क्या है? एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें क्या होगा, सपोज आई एम एट होम और हमारे पास अभी है अवेलेबल चावल है, दाल है और हल्दी है, कुछ गोल मिर्च है, शुगर है, और हम चाहते हैं कि इन इंग्रेडिएंट से हम क्या बना सकते हैं, कौन सा खाना बना सकते हैं, वो हमको ये एप्लीकेशन सजेस्ट करेगा। और एक एक खाना भी बन सकता है, एक डिश भी प्रिपेयर हो सकता है, वी कैन प्रिपेयर मोर देन वन डिश ऑल्सो. So it will recommend all those dishes which can be prepared using those ingredients which is available at home. उसके बाद it will also help the user to prepare that dish, step by step guidance भी होगा उसमें.
तो कैसे होगा उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट विल बी डन यूजिंग PHP, MySQL, HTML, CSS जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें इस काम को हम लोग को करना है। अब यूजर का इनपुट क्या होगा? सपोज आई एम अ यूजर, आई हैव सम इंग्रेडिएंट्स, कुछ हमारे पास सामग्री है घर के अंदर। तो a form where user can input the ingredients they currently have. अब if I am a user, I input what are the available ingredients, मतलब सामग्री, सामान, खाना बनाने का सामान, क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है। I will enter those with the help of a form. उसके बाद क्या होगा? जब हम एंटर करेंगे तो आई विल गेट अ लिस्ट ऑफ डिश दैट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दोज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर भी बता रहा है, माई एसक्यूएल डेटाबेस इज रिक्वायर्ड दैट विल स्टोर receipts along with the list of ingredients required for each receipt. पहले से डेटाबेस में क्या रहेगा? पहले से रहेगा बहुत सारा रेसिपी, मतलब खाना बनाने का तरीका, और उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास पहले से रहेगा। ओके। उसके बाद जो सिस्टम है वो रिकमेंड करेगा थ्रू अ एल्गोरिथम, PHP कोड विल मैच द यूजर्स इंग्रेडिएंट विद द अवेलेबल रिसिप्ट्स और recommend recipe that can be made through those ingredients. रिसिप्ट का डिटेल रहेगा। ये टेबल्स है, रिसिप्ट नाम का टेबल है जिसमें रिसिप्ट आईडी, रिसिप्ट नेम, इंस्ट्रक्शंस रहेगा, इंग्रेडिएंट्स रहेगा, रिसिप्ट। और एक दो टेबल है बेसिकली। एक रिसिप्ट टेबल है जिसमें रहेगा रिसिप्ट का नाम, जैसे सपोज बिरयानी, और उसका बनाने का इंस्ट्रक्शन, जैसे राजमा कढ़ी, उसको बनाने का तरीका, जैसे कोरमा उसको बनाने का तरीका, जैसे मसाला डोसा उसको बनाने का तरीका, जैसे इडली सांभर उसको बनाने का तरीका, ये रेसिपी के अंदर रहेगा। ओके। उसके बाद रहेगा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री का नाम, कौन कौन सा सामान आपके पास, खाना बनाने का सामान आपके पास अवेलेबल है। ये दो टेबल रहेगा, एक रेसिपी टेबल रहेगा, एक इंग्रेडिएंट्स टेबल रहेगा। बैकएंड प्रोग्रामिंग PHP में करना है, डेटाबेस MySQL में होगा, HTML में हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे। ये इतना दिया हुआ है। ठीक है। अब इससे हम लोगों को समझने की कोशिश करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोगों का यूजर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग विल डिसाइड विद द लिस्ट ऑफ यूजर। सो लिस्ट ऑफ या टाइप ऑफ यूजर्स। इसमें जो टाइप ऑफ यूजर्स होंगे, कौन कौन होगा, वो हम लोग देखते हैं। एक यूजर तो होगा एडमिन, और एडमिन का रोल क्या होगा? एडमिन का रोल होगा, यहाँ पे रोल हम लोग लिखेंगे। एडमिन का रोल मतलब एडमिन का काम क्या होगा? तो एडमिन का काम होगा ये वो टेबल जो है रिसिप्ट्स और इंग्रेडिएंट्स टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करना। बिकॉज सिस्टम के अंदर तो सारा रिकॉर्ड्स पहले से रहेगा, तो ये एडमिन करेगा। ठीक है। इसमें हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि एडमिन अगर इसमें डालेगा तो जितना रिसिप्ट एडमिन को पता है वो सिर्फ डाल सकता है। तो हम लोग इसको अगर बना दें कि कोई भी आदमी जिसको पता है वो आकर के रजिस्टर करेगा एज अ यूजर, एडमिन उस यूजर को अप्रूव करेगा, और जो अप्रूव्ड यूजर्स है वो अपना खाना बनाने का जो सामग्री है और उससे कैसा खाना बन सकता है उसका इंफॉर्मेशन यूजर्स भी एंटर कर सकता है। जो भी यूजर है जिसको पता है वो भी यूजर एंटर कर सकता है। उससे क्या होगा? लाइक सपोज समवन इज फ्रॉम साउथ, तो साउथ के डिश का के बारे में वो एंट्री कर सकता है। समवन इज फ्रॉम सपोज कश्मीर, तो कश्मीर में क्या 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 डिश है वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले आदमी को नहीं पता है। तो वो कैसे डालेगा? वो तो अपना अपने लेवल से अपना जो जानकारी है वो डालेगा। तो ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि एडमिन का क्या रोल होगा और दूसरा यूजर हमारे पास कौन होगा। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं
हम लोग इसको कर लेते हैं कि एक यूजर होगा, एक यूजर होगा who will or who can enter the receipts and the ingredients। ठीक है। देखिए, ये जो हम प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए चल रहे हैं कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आता है तो हम लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट विल नॉट बी सॉल्व इन वन सेशन, इट विल टेक few sessions to complete, but first we have to understand the work, divide the work, understand the table, decide the flow, तब फिर काम आसान हो जाता है। We do not start the project directly, कोडिंग शुरू नहीं करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक तो यूजर होगा जो रिसिप्ट और इंग्रेडिएंट्स एंटर कर सकता है। ठीक है। अब इसके लिए काम कैसे होगा? यूजर नीड्स टू रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले यूजर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। अब यूजर जो रजिस्टर करेगा, क्यों रजिस्टर करेगा? इसलिए कि कोई भी अगर बाहर से आकर के आदमी उसमें डालना शुरू कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई गार्बेज वैल्यूज डाल दे, कोई ऐसा वैल्यू डाल दे जो सही नहीं हो, तो क्या होगा? सिस्टम यूजर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, तो एक यूजर आएगा, वो रजिस्टर करेगा। रजिस्टर जो करेगा, एडमिन विल अप्रूव द यूजर। ठीक है, तो एडमिन जो होगा उस यूजर को अप्रूव करेगा कि क्या ये यूजर ठीक यूजर है, मतलब उसका क्वालिफिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेगा कि जेन्युइन यूजर होना चाहिए, तभी उसको अप्रूवल मिलेगा। तो एडमिन अप्रूव करेगा। वंस एडमिन अप्रूव कर देगा, देन द यूजर कैन एंटर receipts एंड ingredients। एक तो यूजर हो गया जो बाहर का यूजर होगा, वो आएगा, रजिस्टर करेगा, उसको लॉगिन मिलेगा। लॉगिन मिलने के बाद फिर वो एडमिन के अप्रूवल के बाद अपना काम कर सकता है। ठीक है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ यूजर, सेकंड टाइप ऑफ यूजर यहाँ पर एडमिन का काम आ रहे हैं। तो एडमिन इज द सेकंड टाइप ऑफ यूजर। नाउ व्हाट कैन एन एडमिन डू? सो एन एडमिन कैन, हम लोग देखते हैं कि एडमिन क्या क्या चीज कर सकता है। तो एडमिन क्या क्या चीज कर सकता है, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एडमिन कैन अप्रूव रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड यूजर्स। तो एडमिन shall be able to approve the registered users, जो भी रजिस्टर्ड यूजर उसको अप्रूव करेगा। ठीक है। एडमिन कैन व्यू ऑल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स जो भी डाल रहे यूजर्स वो एडमिन व्यू कर सकता है और इसको डिलीट कर सकते हैं। कोई ऐसा रेसिप आ गया जो लगता है कि सिस्टम में हम लोगों को नहीं रखना है, तो हम लोग उसको हटा देंगे। तो एडमिन कैन व्यू एंड डिलीट रिसिप्ट्स जो डाला गया है, ये हो जाएगा। उसके बाद एडमिन कैन एनेबल, डिसेबल, डिलीट यूजर्स। कोई यूजर अप्रूव हो गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो एडमिन के पास राइट होना चाहिए कि किसी यूजर को डिसेबल कर दे, कुछ दिनों के लिए उसका परमिशन रोक दे या परमानेंटली उसको डिलीट कर दे। तो ये एडमिन कर सकता है। अब एक आ गया हमारा एंड यूजर। एंड यूजर जो सिस्टम का यूजर होगा, सिस्टम को जिससे हेल्प मिलेगा, जो घर बैठा है और उसको चाहिए कि उसको खाना बनाने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो एंड यूजर होगा। एंड यूजर का क्या रोल होगा? तो एंड यूजर जो है
end user can enter ingredients available at home। इसको इतना करना है कि जो जो सामग्री उसके पास अवेलेबल है वो उसमें डाल सकता है। ठीक है, एक फॉर्म होगा, फॉर्म में वो एंट्री कर देगा, तो एंटर इंग्रेडिएंट्स एट होम। और सिस्टम will will match list of recipes based on the ingredients available with the user। The system will match list of recipes based on ingredients available with the user and display it for the user। यूजर को वो दिखा देगा, यूजर वहां से यूज कर सकता है। ठीक है, इतना काम हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में करना होगा। क्या क्या काम करना होगा? एक एडमिन होगा जो यूजर्स डालेगा उसको अप्रूव करेगा। एडमिन खुद भी ये डाल सकता है। एडमिन कैन ऑल्सो एंटर रिसिप्ट्स और एडमिन जो है वो भी अगर उसके पास रिसिप्ट है तो वो भी एंटर कर सकता है। और यूजर्स भी एंटर कर सकता है। यूजर जो एंटर करेगा उसको लॉग इन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, तब करना होगा ताकि डेटा सिक्योर रहे। और एडमिन जो है वो बैकअप लेने का और रिकवरी का कुछ ऑप्शंस हम लोग फॉर सिक्योरिटी ला सके। बैकअप रिकवरी ऑप्शन और डेटा एडमिन के पास ये भी रहना चाहिए, राइट, कि वो डेटा को रिकवर कर सके इन केस डेटा लॉस हो रहा है। तो ये इतना काम होगा इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यूजर्स जो होगा, कोई भी यूजर जो होगा इस सिस्टम का, वो आकर के वो सर्च करेगा तो उसको रिसिप्ट मिलेगा, उसको खाना बनाने का तरीका मिलेगा, वहां से वो खाना बनाना देख करके अपने पास जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उससे खाना बना सकता है, कोई डिश प्रिपेयर कर सकता है। दिस इज व्हाट
दिस एप्लीकेशन विल बी यूज्ड फॉर। यूजर, एक यूजर होगा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एप्लीकेशन, जिसके पास ज्यादा राइट होगा, ज्यादा काम कर सकता है। जो अभी हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक यूजर होगा जो हमको कुछ खाना आता है और आई वांट टू contribute, so I can also enter my receipt if I know something, and but that will not directly be visible to the public. ये जो एंड यूजर है, इट इज पब्लिक, कोई भी आएगा तो वो यूज कर सकते हैं। बट इस तरह से हम लोगों को बनाना है, तो ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट आर द टेबल्स रिक्वायर्ड। तो आज जो हम लोग का सेशन है इसमें हम लोग ये दो काम करेंगे। एक तो हम लोगों ने ये कर लिया है, जो अभी आपको मैंने बताया, यूजर्स का सबसे पहला चीज होना चाहिए यूजर्स का। तो यूजर्स का हम लोग यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं काम, व्हाट आर द वर्क्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स दैट इज रिक्वायर्ड। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद दैट इज रिक्वायर्ड इज द टेबल्स। टेबल्स क्या क्या होगा, यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि ये दो तीन टेबल के बारे में सजेस्ट कर रहा है। तो हम लोग पहले इन दो टेबल की को कॉपी करते हैं, इन दो टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि वेदर इट इज कंप्लीट और वी नीड समथिंग मोर इन दिस। और इसके अलावा हम लोगों के पास क्या आएगा, एक यूजर टेबल होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास लॉगिन टेबल। ठीक है, लॉगिन करते ही जब यूजर रजिस्टर करेगा तो उसका डिटेल यूजर टेबल में जाएगा, और लॉगिन करने के लिए उसका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, और रिसिप्ट्स रहेगा, इंग्रेडिएंट्स रहेगा। ये इतना टेबल्स की जरूरत पड़ सकती है। अभी जो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन, दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, इसका हम लोगों ने दो तीन बार पढ़ा और समझने की कोशिश किया, तो ये समझ में आया कि ये यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिस्ट बना लिया। नाउ वी हैव टू सी द टेबल्स based on the type of the users and the activity that the users can perform. Now what we have to do, we have to decide on the tables. तो टेबल कुछ दिया हुआ था, टेबल दिया हुआ है, इसका कॉलम दिया हुआ है, बट इट इज नॉट के ये इसमें जो दिया हुआ है दैट इज कंप्लीट। अब आपको देखना है कि इसमें व्हाट वी कैन डू। तो हम एक रिसिप्ट टेबल बना रहे हैं, और इसके लिए हम लोग इंसर्ट करते हैं टेबल। इसमें कॉलम का नाम रहेगा, उसका डेटा टाइप रहेगा, उसका साइज रहेगा, उसका अगर कोई कंस्ट्रेंट उस पे है तो वो हम लोग मेंशन करेंगे। तो दीज आर फ्यू। इसमें हम लोग जैसे रखेंगे, कॉलम एक रहेगा रिसिप्ट आईडी, ठीक है, या पहला तो ये हेडिंग है, तो हम लोग लिखते हैं कॉलम नेम, इसका डेटा टाइप, इसका साइज, और कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, और इसमें किसी तरह का कोई कंडीशन अगर है तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू insert few rows below. जितने कॉलम्स हम लोगों को जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग यहाँ पे रोज बढ़ा लेंगे। पहला कॉलम रिसिप्ट टेबल में जो रिसिप्ट टेबल, ये जो टेबल है दिस इज द फर्स्ट टेबल। इस टेबल में हम लोग कॉलम हो जाएगा
रिसिप्ट आईडी, इसका डेटा टाइप हम लोग ले लेंगे इन, ऑटो इंक्रीमेंट यस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में सेकेंड कॉलम विल बी रिसिप्ट नेम, दिस कैन बी varchar। साइज इसका हम लोग ले लेते हैं, रिसिप्ट का नेम है 100 कैरेक्टर्स का। उसके बाद इसका हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, इसको बनाने का तरीका। इंस्ट्रक्शन में हम लोग एक पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल लेंगे, जिसमें उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो डालेंगे। तो फाइल का नाम रखना होगा। तो ये 200 कैरेक्टर्स का हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद उस रेसिपी का, सपोज बिरयानी है तो उसका हम लोग एक फोटो दिखा दिखा सकते हैं। तो उसका एक फोटो, फोटो के लिए भी हम लोग फाइल का नाम रखेंगे varchar 200। तो रिसिप्ट हो गया, उसका नाम इंस्ट्रक्शन फोटो, रिसिप्ट नेम इंस्ट्रक्शन फोटो। ठीक है, एक टेबल ऐसे बना दिया हम लोगों ने। अब दूसरा टेबल हम लोग बनाना चाहते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरे टेबल में हम लोग आ जाते हैं। दूसरा टेबल जो है वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, क्या क्या सामान आपके पास अवेलेबल है खाना बनाने से रिलेटेड वो है। तो ये इंग्रेडिएंट आईडी हो जाएगा, इंग्रेडिएंट आईडी इंटीजर टाइप का रहेगा। इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका हम लोग फोटो रख सकते हैं। ठीक है, तो फोटो विल बी ऑप्शनल, बट फोटो हम लोग रख सकते हैं और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो इंग्रेडिएंट का नाम, इंग्रेडिएंट का फोटो। और हम लोगों के पास एक टेबल है जो इन दोनों को मैप करेगा। मैप करेगा मतलब कौन से रिसिप्ट के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा इंग्रेडिएंट किस रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे चावल है तो चावल विल गो इन बॉइल्ड राइस, चावल विल गो इन बिरयानी, चावल विल गो इन और भी बहुत सारा डिश है जिसमें चावल का यूज हो सकता है। तो हम लोगों के पास लिस्ट रहना चाहिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट और कौन से रेसिपी में यूज होगा। तो कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सा रेसिपी में यूज होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, उसमें रखना होगा। तो एक और हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। इस टेबल का नाम क्या है यहाँ पे देखिए, इसने दिया था रिसिप्ट इंग्रेडिएंट्स। इसमें रिसिप्ट आईडी रहेगा, दोनों टेबल का आईडी रहेगा। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, तो आई एक्सप्लेन व्हाट वी मीन बाय दिस। देखिए, दो टेबल अलग अलग है। एक टेबल है जिसमें रिसिप्ट है और एक टेबल है जिसमें इंग्रेडिएंट है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट किस रिसिप्ट के लिए यूज होगा वो लिंक कहीं पर रहना चाहिए, तो वो इस टेबल में रहेगा। इसमें रिसिप्ट आईडी भी रहेगा और इंग्रेडिएंट आईडी भी रहेगा, या रिसिप्ट का नाम और इंग्रेडिएंट का नाम जो आपको कन्वीनियंट है वो रख सकते हैं। हम लोग आईडी लेकर के चलते हैं, आईडी रहेगा। इसमें दो ही कॉलम, इन सबकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग इसमें डेटा फिल करके भी देखेंगे कि कैसा डेटा होगा, तब फिर हम लोग इसको डेटाबेस में बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या किया, हम लोगों ने लिस्ट टाइप ऑफ यूजर्स और उसका एक्टिविटी नोट किया। अब टेबल्स, तीन टेबल हम लोगों ने बनाया। चौथा टेबल हम लोगों का हो जाएगा यूजर और लॉगिन टेबल। ठीक है, तो एक यूजर टेबल होगा। यूजर टेबल हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
यूजर्स टेबल में यूजर आईडी होगा, यूजर का नाम होगा, यूजर का ईमेल होगा, यूजर का फोटो होगा, यूजर का मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, फोटो, ईमेल, यूजर का नाम, मोबाइल नंबर हम लोग ऐड कर ले लेता है। ठीक, नाम, ईमेल, फोटो, मोबाइल। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा ले लेते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है, क्या करता है। वो हो सकता है कि कोई शेफ हो, कोई कुक हो, तो उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा इस तरह के इसमें। तो वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हम लोग रखते हैं। और ये यूजर जो है ये एक्टिव है, स्टेटस इसका क्या है, ये भी हम लोग को रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग को रखना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं। एक टेबल और बना लेते हैं, लॉग इन टेबल। जब यूजर रजिस्टर करेगा इतना इंफॉर्मेशन उसका यहाँ पे आ जाएगा, और लॉग इन वो करेगा तो लॉग इन में उसका इंफॉर्मेशन जाएगा। लॉग इन टेबल में हम लोग रखेंगे यूजर मेल रख लेते हैं, यूजर का पासवर्ड रख लेते हैं, और हम लोग रख लेते हैं ये यूजर का स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कॉलम्स हो गया। इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार अभी चर्चा करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। और इस पे कुछ क्वेश्चंस होगा तो क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे। कि जो यूजर रजिस्टर करेगा उसका हम लोग नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फोटो और प्रोफेशन रखेंगे। और उसका हम लोग ईमेल, लॉगिन के लिए ईमेल टेबल में ईमेल रखेंगे, उसका पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है, वो सब रखेंगे। और उसका स्टेटस रखेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो है यूजर डिसेबल्ड रहेगा। इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, डिसेबल्ड रहेगा, एनेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर डिसेबल कर देंगे हम लोग तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, एनेबल कर देंगे तब लॉगिन कर सकेगा। और एनेबल्ड डिसेबल करने का जो फीचर रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, वो रहेगा सिर्फ एडमिन के पास। तो ये हम लोगों ने बना लिया। हम लोगों के प्रोग्राम में देयर विल बी 5 टेबल्स। व्हाट आर द टेबल्स? रिसिप्ट टेबल, इंग्रेडिएंट टेबल, रिसिप्ट इंग्रेडिएंट मैपिंग टेबल है ये, और यूजर का टेबल है लॉगिन टेबल। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के चलेंगे आने वाले दिनों में, विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। इसमें what is the project? This is receipt recommendation system where users can, a public user can come and enter the ingredients that he has at home, and he can get a list of dishes which he can prepare with those ingredients, and also the step by step guidance how to prepare that, या उसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन जो होगा वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। So this is the first session on the project, how we approach towards the project, what is given, what we understand, what are the lists that we make, and then we will start. So this is the day one. Day one में हम लोग ये सब काम करते हैं। Next we'll try to create some data flow diagrams, और उसको वहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़। थैंक यू वेरी मच।